بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مس عظمیٰ، اور یہ جماعت سوم ہے۔ ام المدارس ماڈل اسکول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بیٹا، آج دن ہے بدھ اور تاریخ ہے 26 مئی 2021۔ بیٹا، ہمارا آج کا عنوان ہے مذکر مؤنث۔ آج ہم پڑھیں گے بیٹا مذکر مؤنث کے بارے میں، اور ہم یہ کام کریں گے اپنا ورک شیٹ صفحہ نمبر 11 پر۔ بیٹا، ہم اپنا کام شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھیں گے۔ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اب بیٹا آپ نے اپنے ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 11 کھولنا ہے، اور اس پر دن لکھنا ہے بدھ، اور تاریخ لکھنی ہے 26 مئی 2021۔ بیٹا مذکر مؤنث ہم نے آج کرنا ہے، تو ہم جو مذکر اور مؤنث کیا ہوتا ہے ہم یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ مذکر ہوتا ہے بیٹا نر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو لڑکا، مرد، بلا وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں الفاظ، یہ مذکر ہوتے ہیں۔ اور مؤنث الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مادہ الفاظ، مادہ کے لیے، یعنی لڑکی، بلی، عورت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مذکر مؤنث بھی کہتے ہیں اس کو، اور ہم تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔ تذکیر و تانیث کا مطلب ہوتا ہے مذکر مؤنث، ٹھیک ہے۔ تذکیر و تانیث یا مذکر مؤنث دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا ورک شیٹ میں مذکر کے مؤنث لکھیں۔ ہمیں ایک کالم میں مذکر دیے گئے ہیں اور دوسرے کالم میں مؤنث دیے گئے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے پڑھنا ہے، سب سے پہلے کیا لفظ ہے؟ شیر۔ تو بیٹا شیر کے کیا مؤنث ہوتے ہیں؟ ہاں جی، شیرنی۔ شیر کی مؤنث شیرنی کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچوں ہے ہرن۔ ہرن کی مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ ہرن کی مؤنث کو کہتے ہیں ہرنی۔ اس کے بعد گھوڑا۔ گھوڑا کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ گھوڑی۔ اس کے بعد ہے بندر۔ بندر کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ بندریا، ٹھیک ہے۔ بندر کی مؤنث کو کہتے ہیں بندریا۔ اگلا ہے بلا۔ بلا کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ بلی۔ اس کے بعد ہے بیل۔ بیل مذکر ہے اور اس کی مؤنث کو بیٹا کہتے ہیں گائے، ٹھیک ہے۔ بیل کی مؤنث ہے گائے۔ بچوں اگلا لفظ ہے بوٹا۔ بوٹا کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ بوٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مالک۔ مالک، مالک کی مؤنث کیا ہوگی؟ مالکن، ٹھیک ہے بچوں۔ مالک کی مؤنث ہے مالکن۔ اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے درزی۔ درزی بیٹا مذکر کو کہتے ہیں اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ درزن، ٹھیک ہے بچوں۔ درزی کی مؤنث ہے درزن۔ اس کے بعد ہے باپ۔ باپ مذکر لفظ ہے اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ ماں، ٹھیک ہے۔ باپ کی مؤنث ماں۔ اگلا لفظ ہے ہاتھی، ٹھیک ہے۔ ہاتھی، اور ہاتھی کی مؤنث کیا ہوگی؟ ہتنی، ٹھیک ہے۔ ہت نون چھٹی نی، ہتنی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ماموں۔ ماموں بیٹا مذکر لفظ ہے اور ماموں کی مؤنث کیا ہوگی؟ ممانی، ٹھیک ہے، ممانی۔ اگلا لفظ ہے تایا۔ تایا کی مؤنث کیا ہوگی؟ تائی، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں اگلا لفظ ہے نوکر۔ نوکر کی مؤنث کیا ہے؟ نوکرانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے بیٹا۔ بیٹا کی مؤنث بچوں کیا ہے؟ بیٹی۔ اگلا لفظ ہے شہزادہ، اور شہزادہ کی مؤنث کیا ہوگی؟ شہزادی۔
यहाँ पे बेटा गलती से लिखा गया है, आपने इसको ठीक कर लेना, ठीक है। हे की जगह आएगा छोटी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आगे हमें दिए गए हैं कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मुज़क्कर नहीं होते, ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मुज़क्कर नहीं होते। अच्छा बेटा, जो जानदार होते हैं अल्लाह ताला ने हर जानदार को जोड़ी की शक्ल में पैदा किया है, ठीक है। जैसे अभी हमने मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़े कि जैसे शहज़ादा थे, शहज़ादी, शेर, शेरनी, अम्मी, अब्बू, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके मुज़क्कर अल्फाज नहीं होते, जैसे छिपकली। अब छिपकली ये बेटा जानदार चीज़ है, जानवर है, तो इसका अल्लाह ताला ने जोड़ा तो लाजमी बनाया ही है, लेकिन इसमें चाहे वो नर हो या मादा हो, यानी मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, उसके लिए हम छिपकली लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं। और छिपकली क्या है, मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि छिपकली होती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हम कहें छिपकली होता है, ठीक है। छिपकली होती है, ठीक है। तो हम उसके लिए मुज़क्कर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। मुज़क्कर उसका होता है, मगर हम मुज़क्कर लफ्ज़ उसके लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसे मुअन्नस के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है जानवर लोमड़ी। लोमड़ी भी बेटा जानवर है, उसका अल्लाह ताला ने जोड़े में ही पैदा किया है, नर भी और मादा भी। लेकिन ये जो है, इसका हम मुज़क्कर में कोई और लफ्ज़ इसका नहीं है। जैसे कौवा है, उसका भी हम कौवा ही इसको कहेंगे। चिड़िया, चिड़ा हम कहते हैं ना, तो बेटा इसमें लोमड़ी छिपकली ही होगा, लोमड़ी का हम लोमड़ी ही कहते हैं। कभी कोई और इसके लिए लफ्ज़ मुज़क्कर लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। अगला लफ्ज़ है छछूंदर, ठीक है। ये भी मुअन्नस लफ्ज़ है, इसका मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं होता। जानवर है ये बेटा, एक जानवर होता है जो चूहे की किस्म होती है, जिसकी जो है उसका मुंह और उसका जिस्म जो है वो आम चूहों के मुकाबले में पतला और लंबा होता है, ठीक है। ये चूहे की एक किस्म है, तो ये भी इसका मुज़क्कर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। मुज़क्कर होता है असल में, जोड़े में अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन मुज़क्कर लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम इसे मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मछली, ठीक है। मछली में भी जानदार है, ये जानवर है, तो अल्लाह ताला ने इनको जोड़े में ही बनाया है, लेकिन हम इसके लिए कोई मुज़क्कर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। हम मछली होती है कहते हैं, कभी ये नहीं कहते कि मछली होता है, ये मैंने मछली खाया, हम कहते हैं मछली खाई, ठीक है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मैंने मछली खाई, मछली खाया, या मैंने मछली पकाया, ठीक है। हम कहते हैं मछली पकाई, मछली खाई, ठीक है। यानी इसको मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे हमें कहा गया है कि इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं, ठीक है। इन अल्फाज को इस्तेमाल करना है और इनके जुमले बनाने हैं। तो पहला छिपकली था, तो इसका जुमला मैंने लिखा, मैंने दीवार पर छिपकली देखी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और भी लिख सकते हैं। अब हमने ध्यान रखना है, हमने ये नहीं कहना मैंने दीवार पर छिपकली देखा नहीं आएगा, देखी आएगा, ठीक है। उसके बाद लोमड़ी चालाक जानवर है। अच्छा, ये भी मुअन्नस है, ठीक है। आप कोई और जुमला भी इसके बना सकते हैं। अगला छछूंदर, मैंने छछूंदर देखी, ठीक है। ये मुअन्नस है, देखी आएगा, हमने देखा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद है मछली, अब्बू ने मछली पकड़ी, ठीक है। ये मुअन्नस है, तो हम हमेशा मछली पकड़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि अब्बू ने मछली पकड़ा, ठीक है। मछली पकड़ी। तो बच्चों, आपने अपनी वर्कशीट का ये सफ़र नंबर 11 से हल करना है और इसकी तस्वीर बनाकर मुझे जी सूट पर सेंड करनी है, ठीक है। लाजमी अपना काम करके जी सूट पर सेंड किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।